Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Okay friends and students, the same. Hoping you are doing perfectly fine. The plan today is to take the second chapter of OCM subject a little bit more in the correct डायरेक्शन. सो द लास्ट टाइम वी मेट, पिछली बार जब मिले थे तो मैंने ये बताया था, और तब थोड़ा थोड़ा हमको भी पता चला था कि जो कवर है, कवर पे ही ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये दिए गए हैं. हमने लास्ट टाइम स्टाफिंग किया और उसके नीचे दिया गया है डायरेक्टिंग. तो आज हमारा मुद्दा, आज हमारा डायरेक्शन डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसकी ओर जाने वाला है. वी हैव बीन डूइंग चैप्टर नंबर 2 एंड जस्ट टू रिमाइंड यू एज फार एज वेटेज इज कंसर्न, के मतलब ये जो चैप्टर है वो एग्जामिनेशन में कितना भारी है एज फार एज मार्क्स इज कंसर्न. आप ऊपर नज़र मार सकते हो. इट्स फॉर 12 मार्क्स और टोटलिटी में 15 मार्क का आता है, बट विथ और विदाउट ऑप्शन जो आपको कंपलसरी सॉल्व करना पड़ता है इज़ फॉर ऑन 12 मार्क्स. दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकम्स चैप्टर नंबर 4, जिसको बिजनेस सर्विसेज कहते हैं. वो एज इन व्हेन अपनी गाड़ी वहाँ तक पहुँचे वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. टुडे मूविंग ऑन विथ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो लाइक मिस्टर हेनरी फ्यूल ने काफ़ी समय पहले हमको ये बताया है, टू मैनेज, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू ट्राइंग टू डू. मैनेजमेंट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल. ओके, इसमें स्पेसिफिकली वो वर्ड डायरेक्टिंग नहीं है, बट डेफिनेटली नीचे जो दिए गए 6 मुद्दे हैं उसमें डायरेक्टिंग डेफिनेट है, और हम लोग चौथे वाले पॉइंट पे आज है. सो टुडे व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दैट दिस थिंग कॉल्ड एज डायरेक्टिंग. अबव मी इज द साइन ऑफ गूगल मैप्स, बिहाइंड मी इज द इंटरफेस of Google Maps. Why is Google Maps so famous? उसके पहले भी मैप्स होते थे, उसके पहले दूसरे कंपनीज भी मैप्स बनाते थे, बट जितने बेहतर तरीके से गूगल ने मैप्स बनाया है उतने बेहतर तरीके से दूसरा नहीं बना पाया. जितने एग्जैक्ट डायरेक्शंस गूगल दे सकता है, लेफ्ट राइट और कौन कहाँ पर है, उतना बेहतर डायरेक्टिंग दूसरा नहीं कर पाया है. सो आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आप थोड़े मेरे बगल में पढ़ो, द वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग मीन्स व्हाट? डायरेक्टिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस और टेक्निक of instructing, guiding, inspiring, counseling
overseeing and leading people. Many a times a teacher in connection to the students that the teacher is teaching, tutoring, coaching, उसको exactly यही चीज़ें करनी पड़ती है, because it is the teacher's job to direct the students in the correct direction. उसके लिए उनको इंस्ट्रक्टिंग का काम अच्छा करना पड़ता है, उनको गाइडेंस करना पड़ता है, उनको इंस्पायर करना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है. एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बीन रिटन हियर. एंड लीडिंग पीपल, टीचर के लिए लीडिंग स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो इन अ टीचर स्टूडेंट इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, बट जो एडुकेशनल गोल्स, एकेडमिक गोल्स बनाए जाते हैं ना, अगर वहाँ तक स्टूडेंट्स को पहुँचाना है तो टीचर की डायरेक्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. ओके, मूविंग ऑन. बिसाइड्स अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट आर वी डूइंग? डेफिनेशन. किन्होंने क्या बताया है? अगेन अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है. इफ देर इज अ इमेज ऑफ दीज वेल नोन ऑथर्स और थिंकर्स, ओके, मैनेजमेंट गुरुज ऐसे कहा जा सकता है, तो आई डू माई बेस्ट टू पुट इट अप. बट अगर कभी अवेलेबल नहीं होता तो कर नहीं पाते हैं. ओके, सो थियो हाइमन, इनका ऑलरेडी एक डेफिनेशन स्टाफिंग के लिए भी इन्होंने दिया था. डायरेक्टिंग के बारे में इन्होंने क्या कहा है? डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड द टेक्निक्स, जो इसके पहले ऑलमोस्ट सेम था, यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टन that operations are carried out as planned. Directing is something जहाँ पे एक्शन होता है, उसके पहले एक्शन नहीं होता, उसके पहले सिर्फ तैयारियां होती है वेरियस डिपार्टमेंट्स में. तो इट इज व्हेन द डायरेक्टर सेज एक्शन इवन ऑन अ मूवी सेट, तो एक्चुअली काम आगे जाता है, तो एक्चुअली सीन आगे जाता है, गाड़ी का पहिया आगे घूमता है. ओके, अर्नेस्ट डेल, इनका क्या कहना है? डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन, क्या करना है, एंड इन व्हाट मैनर, थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. ओके, एवरी ऑथर, एवरी गुरु हैज अ डिफरेंट वे, थोड़ा थोड़ा शब्दों में, बट सभी का इंटेंशन यही है कहना कि डायरेक्टिंग में एक्चुअली आप दूसरे किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, और अगर वो उस डायरेक्शन पे चले तो जो उनका गोल है, ओके, लास्ट स्टेप, वहां तक वो पहुंच जाएंगे, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे. ओके, मूविंग ऑन. इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट मुद्दा टुडे. जस्ट लाइक वी हैव प्रीवियसली लर्नड फॉर स्टाफिंग, टुडे वी आर लर्निंग कि डायरेक्टिंग, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. वेल, the very first one says initiates action. Now by initiates action आपका मतलब क्या होता है? इसके पहले सिर्फ तैयारी हो रही है. ओके, मतलब अगर एक घर में शादी होने वाली है, उसके पहले काफी महीने पहले प्लानिंग 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 और प्लानिंग अलग अलग डिपार्टमेंट का, बट शादी अब तक नहीं हुई है. तो जब वो शादी का पहला फेरा, ओके, या कपल चर्च के अंदर चल के जा रहे, वो एक्शन है. ओके, हाँ, मतलब एक्चुअली शादी हो रही है. तो दैट इज व्हाट प्लानिंग, सॉरी, दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज. कि जो भी आपने सोचा था, उसको, जो आपने लिख कर रखा था, उसको कार्यशील करना, एक्शन में लेकर आना. बिकॉज इफ योर थॉट, थिंकिंग इज ओनली इन योर माइंड और ऑन अ बुक और ऑन अ पेपर, वो किस काम का है? इट्स जस्ट प्लान्स, इट्स जस्ट पॉलिसीज जो पेपर पे है. वो ऐसा तो कितने लोगों ने पेपर पे क्या क्या लिख कर गए हैं, बट इट डजंट ब्रिंग एनी चेंज, बदलाव. अगर चेंज लाना है, जो पेपर में लिखा है उसको एक्शन में लाना जरूरी है. एंड डायरेक्टिंग डज दैट. जो सोचा गया है टॉप लेवल के लोगों से, उसको जो लोअर लेवल के लोग हैं एक्शन में, कार्यशील प्लान को, ओके, सोच को लेकर आते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंस, इनिशिएट्स एक्शन, एक्शन में लेकर आता है. ओके, सेकेंड वन,
integrates efforts. Now any event, घर में शादी ब्याह हो या कोई बड़े फिल्म फॉर अवार्ड्स हो या कोई टूर्नामेंट हो, ओके, there are many departments, ओके, जो अलग अलग काम कर रहे हैं बट सबका गोल एक है. डायरेक्टिंग क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एफर्ट्स है उसको एकत्र करता है, एक साथ लेकर आता है. बिकॉज अगर अलग अलग ये एफर्ट्स करे कोई काम का नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज टू एनीवन. क्योंकि वो डिपार्टमेंट का 100% और ये डिपार्टमेंट का 100%, अरे बट कंपनी के लिए काम कौन कर रहा है. तो अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पूरे कंपनी की सोच या डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, हर डिपार्टमेंट की जो मेहनत है उसको इंटीग्रेट, एक साथ लाने का काम कौन करता है, डायरेक्टिंग करता है. जस्ट लाइक इन अ कंप्यूटर एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर इज द ब्रेन एंड इट इज इन लिंक्ड विथ ऑल द डिफरेंट पार्ट्स. अगर मॉनिटर अपना ही काम करे, कीबोर्ड अपना ही काम करे, कोई मतलब का नहीं है. देयर विल बी नो यूजफुल आउटपुट out of that particular program. So all of the efforts of the different parts of the computer or the laptop or the mobile, they have to be integrated. Okay, so directing does that. Thirdly, means of motivation, very important. Any company, if it has to increase, and that is what is one of the many functions ऑफ अ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को करना क्या है, जो कंपनी की मैनेजमेंट है दे हैव टू मेक श्योर दैट इस तरह का माहौल बना है, इस तरह का एनवायरनमेंट बना है कि वहां पे जो लोग काम करते हैं, ओके, वो मोटिवेटेड फील हो, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट उनको मिलना चाहिए. देयर आर मेनी मैनेजर्स जिनके नीचे काबिल लोग काम करते हैं. देयर आर वेरी गुड पीपल हु वर्क, हार्ड वर्किंग पीपल हु वर्क, बट देन उनको चमकने का मौका नहीं मिल पाता. अगर मैनेजर अपना डायरेक्टिंग का काम सही तरीके से या मैनेजमेंट अपना डायरेक्टिंग का काम सही तरीके से ना करे, इफ द करेक्ट डायरेक्टिंग वर्क इज डन, तो बिल्ली भी शेर बन सकती है. आप सफलता के लैडर पर, सीढ़ी पर काफी ऊपर जा सकते हो अगर करेक्ट गाइडेंस आपको मैनेजमेंट से सही दिशा में क्या करना है, कैसे करना है, ओके, मिले. तो मोटिवेशन ये डायरेक्टिंग से डेफिनेटली मिलता है. द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेबिलिटी टू whom? टू द वर्कर्स. यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, स्टेबिलिटी प्लेज significant role in the growth and survival of the organization. Effective leadership, communication, supervision and motivation develops cooperation and commitment among the employees. Very important that the different department, the different people who work in the different department and the employees feel that there is stability for them in this particular organization. अगर उस हाथी के तरह आप एक रोप, रस्सी पर चल रहे हो, ओके, और आप एक जगह पर स्टेबल नहीं हो और वो रस्सी के वजह से आप झूल रहे हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन जो झूल रहा है आगे जाए, वो रुक जाता है. ही वेट्स देयर जब तक उसको स्टेबिलिटी ना मिले, उसमें टाइम जाता है, और अगर वो स्टेबल बन गया तो वो एक कदम आगे रखता है. Similarly, if the employees, if the workers of the different departments in a company do not feel stability, तो वो अपने थिंकिंग में आगे नहीं जा सकते हैं, और अगर वो आगे नहीं जा सकते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे जाएगी. सो डायरेक्टिंग ब्रिंग्स स्टेबिलिटी. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, कोपिंग अप विथ चेंजेस, बदलाव, ओके, कहा जाता है अंग्रेजी में चेंजेस. ओके, अ चेंज इज अ परमानेंट, ओके, कांस्टेंट. कि चेंज, बदलाव एक ऐसी चीज है जो होनी ही होनी है, एज सिंपल एज दैट.
यू कैन नॉट 20 सालों से हर एक what you call इंडस्ट्री इस दुनिया में, ओके, इन आवर वर्ल्ड, द मूवी मेकिंग इंडस्ट्री, द एजुकेशन सेक्टर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द स्पोर्ट्स अरीना, ओके, देयर आर चेंजेस हैपनिंग, ओके। अगर आप क्रिकेट देखते हो, देयर वाज नो DRS रूल प्रीवियसली। अगर एक बैट्समैन को आउट दिया गया है, he has to accept it and he has to move on, but now he gets an opportunity कि अगर आप चाहो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो थर्ड एम्पायर से, नहीं आप मेरे LBW को दोबारा देखो। तो आई रिपीट, ये क्या था? इट इज अ न्यू वे। सो द क्रिकेटर्स, हाउएवर बिग दे आर, दे हैव टू बी ट्रेन्ड इन दिस न्यू वे। अगर उनको मौका, उनको पता ही नहीं है, नहीं ये नया तरीका है, ओके, मेरे को ये समझना पड़ेगा, मुझे ये अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे क्रिकेटिंग फील्ड पे, स्पोर्ट्स फील्ड पे इस नए रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई हैव टू यूज दिस फॉर माई गुड, फॉर माई बेटर परफॉर्मेंस, फॉर मी टू गेट वन मोर अपॉर्चुनिटी। तो आई रिपीट, चेंजेस कॉन्स्टेंटली आर हैपनिंग, ओके। डायरेक्टिंग helps the employees in understanding the changes, okay. If there is a company and old machineries were used, but that old machineries were completely removed and new and better machineries were installed, so the laborers, the employees have to be given the required training. उनको बताया जाना चाहिए, आपको ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको इतने नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ेगी। तो तब जाके वो एम्प्लॉइज, जो बदलाव आया है, ओके, उसको वो अपने आने वाले वर्क लाइफ में फिट कर पाएगी। सो चेंजेस जो होता है, डायरेक्टिंग एस्टैब्लिशेस और मेक्स इट सिंपलर, ईजियर फॉर द एम्प्लॉइज टू डील विद द चेंजेस। Sixth point, effective, this is a very common point, utilization of resources. Okay, we have learnt previously, men, machine, money, material, ये क्या है? ये resources है, any resource, okay. आपने इसके पहले staffing किया रहेगा, उसके पहले जो भी मुद्दे किए हैं, this is a very common point. Nobody wants the resources का waste खत्म नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब क्या है? अगर आपको कोई, अगर आपकी मम्मी आपको लेट्स से एक कांदा देती है, अनियन छीलने के लिए, ओके, कट करने के लिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आउटर लेयर आपको निकालना है, बट देन इफ यू आर नॉट गुड एट क्लीनिंग द अनियन, आप एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, मुश्किल से इतना बच जाएगा। नाउ दैट अनियन वॉज अ रिसोर्स टू हेल्प इन द कुकिंग प्रोसेस, बट आपने उसको मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं किया, ओके। आप उसको छीलते गए। योर मॉम हु मे बी गुड एट इट, योर सिस्टर और समबडी इन द फैमिली जो कुकिंग को काफ़ी टाइम से हैंडल कर रहा है, ही और शी में भी गुड एट इट, बोलेगे इतना छीलने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको, वेस्ट हो गया है ये रिसोर्स। तो सिमिलरली डायरेक्टिंग अगर सही से किया जाएगा, whatever are the resources that are available in a company, okay, maybe the laborer employee does not understand ये रॉ मटेरियल है ना, इसको किस तरह हैंडल करना है, इसको किस तरह हमको वेस्ट होने से बचाना है। सो द सुपीरियर्स, ओके, द फोरमैन अबाउट द एम्प्लॉइज, द मैनेजमेंट हैव टू ट्रेन, हैव टू डायरेक्ट आपको क्या किस तरह यूज करना है, ताकि जो रिसोर्स है उसका मैक्सिमम एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, वेस्टेज को कम किया जा सके। नेक्स्ट, क्रिएट्स टीम स्पिरिट। यस, definitely so, because if the correct direction on a movie set, okay, there may be big actors, really big actors, भी जितने बड़े और जितने नामचीन और जितने फेमस आप हो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका ईगो जो होता है ना, ओके, वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा उड़ने लगता है। सो अ डायरेक्टर्स जॉब becomes that important on a movie set कि एक बड़ा एक्टर हमारे पास है, दूसरा भी बड़ा एक्टर हमारे पास है, दोनों ट्राई कर रहे हैं क्या कि एक दूसरे को आउट परफॉर्म करे, बट आई रिक्वायर बोथ
to work as a team, then only I can see my movie being a hit in the future. Similarly, okay, अगर ये team spirit पैदा करनी है, then the management, okay, has to do the directing job properly. अगर proper direction दिया जाए to the lower level staff, तो उनके जो efforts होते हैं वो एक साथ एक टीम जैसे लेकर आया जा सकता है. ओके, द कैप्टन ऑफ अ टीम, एनी टीम, क्रिकेट टीम ले लो, he has to make sure that the bowlers efforts, the fielders efforts, the wicket keepers efforts, the batsmen's efforts, ये सारों की मेहनत एक साथ एक डायरेक्शन में हो ताकि टीम स्पिरिट बन सके और एक टीम होकर वो पर्टिकुलर मैच जीता जा सके. The eighth importance of directing is explores capabilities of individuals. Okay, in any office, in any company, there are many people working. बहुत लोग काम करते हैं और हर एक की capability अलग होती है. ओके, हर एक का क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग रहेगा, हर एक का इंटेलिजेंस लेवल जो है ना वो अलग रहेगा. When directing is done, okay, अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज हो सकता है. यू कैन एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट अंडरस्टैंड ये 20 लोग काम कर रहे हैं बट इट इज दिस पर्सन दैट इज अ लिटिल डिफरेंट. अगर इसको और थोड़ा मोटिवेशन दिया जाए तो उस लेवल से वो ऊपर के लेवल पे आ सकता है और वो कंपनी के लिए एक बहुत बेहतर एसेट बन सकता है. तो when directing is done, the management can understand the different potentials of the employees that are working, and those that have got higher potential, they can be recognized. उनको पहचाना जा सकता है और उनको वो मौका ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज होने का डेफिनेटली मिल सकता है. The next thing, 9th point, increases efficiency level. Okay, again this is a very common point for various functions of management. Everyone, okay, presently Tokyo 2020 Olympics is going on, okay, and there are many events that are happening. If there was someone there was a sports personality, okay, जो running में हिस्सा लिया था and was a winner in the last Olympics. So right now उनको क्या लगता है कि लास्ट टाइम तो मैंने इतने टाइम में ये दौड़ कंप्लीट कर ली थी, तो अभी उतने टाइम में तो नहीं होना चाहिए, उससे और कम टाइम में होना चाहिए. उसको कहते हैं व्हाट यू कॉल इंक्रीज इन एफिशिएंसी. जो काम मैंने पहले से किया है, जितने टाइम में किया है, ओके, अभी मुझे उसको और बेटर करना है. सो इफ द डायरेक्टिंग जॉब बाय द मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल्स इज डन प्रॉपरली, देन ऑटोमेटिकली जो एफिशिएंसी का लेवल है वर्कर्स का, उसको क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है. द टाइम दैट दे टेक to do a particular job, to manufacture a particular product, if the directing job is done properly, automatically, okay, on a movie scene, अगर एक्टर को फ्रीडम दिया जाए, सर आपको जिधर से एंट्री मारना है आप एंट्री मारो, आपको जैसा डायलॉग बोलना है बोलो, काम तो हो जाएगा. बट इफ द डायरेक्टर हैज अ विजन, नहीं सर आपको यही सीन पता है बट मेरे को तो पूरी पिक्चर पता है कि आगे जाके क्या सीन होने वाला है, सो आई एग्जैक्टली नो. सर आप बहुत बड़े एक्टर हो बट द वे दैट आई एम टेलिंग यू, आप उसी तरह यहाँ पे परफॉर्म करना, ओके, उसी लेवल की एक्टिंग आप यहाँ पे करना, सो दैट द एफिशिएंसी ऑफ द सीन इंक्रीजेस, ओके, वो और बढ़ जाएगा. ओके, सो डायरेक्टिंग इज गोइंग टू इंक्रीज the efficiency levels. And the last point, cooperation, again a very necessity when it comes to functions of management. तो अगर management directing का काम अच्छे से करे तो automatically, okay, there is
this feeling of cooperation between the staff at the same level or between different levels. ऊपर क्या कहा गया है? Okay, healthy cooperation, teamwork and higher efficiency level can lead to the attainment of the goals. What is a goal? Well, every management wants that the company जो वो मैनेज कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो. फॉर दैट देयर हैज टू बी कोऑपरेशन. आप अकेले, ओके, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत था, ओके, अकेले इंडिविजुअली यू कांट. इवन somebody like a PV Sindhu, okay, who has won Olympic medal on the second Olympic continuously, even she cannot say मैंने तो 2 ओलंपिक में खेला है, दोनों में मेडल लेकर आया है, मैं ही काफ़ी हूँ. नहीं, ओके, उनका भी उनको भी कोऑपरेशन लगता है उनकी टीम का. ओके, कोच की उतनी ही मदद लगती है, फिजियोथेरेपिस्ट की उतनी ही मदद लगती है, उनके जो ट्रेनर रहेगा, जो मेंटल कोच रहेगा, जो उनको अगर स्ट्रेस होता है उसको कम करने के लिए. इट इज़ अ टीम. इवन दो द इवेंचुअल शो, द इवेंचुअल मैच इज प्लेड बाय वन पर्सन, बट इट इज़ अ टीम. देयर हैज़ टू बी कोऑपरेशन. अगर उनके बीच में और कोच के बीच में अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, द गोल of attaining that particular, achieving of winning that particular medal is never going to be possible. Okay, 10 points is what, like many previous functions of management, we have covered up. Right now the moment कि ये 10 पॉइंट को सर हम याद किस तरह करें? वेल, हम कुछ ना कुछ between me and my technical help कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं. ओके, सो आज आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग किस तरह याद रखना है? वेल, वी आर टेकिंग अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी. आजकल नहीं, कुछ दिनों पहले काफ़ी न्यूज़ में थे. क्रिस्टियानो रोनाल्डो एम्स टू सेलिब्रेट चैंपियंस लीग. मुझे अपना पोजीशन थोड़ा बदली करना पड़ेगा ताकि ये क्लियरली आपको नजर आए. ओके, आई एम डेफिनेटली, द फुटबॉल लवर्स विल डेफिनेटली नो, एंड द रिमेनिंग पीपल, वेल, उनके खेल के लिए नहीं तो उनके लुक्स के लिए, उनके फिजिकल अपीयरेंस के लिए डेफिनेटली आपको ये नाम सुना होगा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो एम्स टू सेलिब्रेट चैंपियंस लीग. उनके लिए काफ़ी बड़ा एक टूर्नामेंट होता है ना. हाउ डू यू रिमेंबर the 10 points of directing from this particular phrase? The highlighted words is what will give you the 10 points. Again, it is not in the order of the textbook, but later on when the PDF is going to be shared, it will be in the order of this particular short form जो हमने आपको, या phrase जो हमने आपको बता के दिया है. I am repeating myself, okay, textbook के order में नहीं है, but yes, जिस मार्क्स जितना मिलना है उसके लिए डेफिनेटली ये ऑर्डर में रहता है. पीडीएफ में ये आपको टेलीग्राम चैनल पे, वेबसाइट के ऊपर शेयर ज़रूर किया जाएगा. अगेन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको इसका जो इंफॉर्मेशन है और कम्युनिटी टैब के द्वारा भी हम आपको बता सकेंगे. सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एम्स टू सेलिब्रेट Champions League. What does that give me? Well, C से cooperation, utilization of resources. Okay, मेरे ऊपर है initiates action. So it's the first point, but यहाँ पे तीसरा है integrates efforts, motivation, stability, team spirit. इस तरफ explores capability of individual, changes को अपने अंदर फिट करने में, अंडरस्टैंड करने में, एंड एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करने में. क्रिस्टियानो रोनाल्डो एम्स टू सेलिब्रेट चैंपियंस लीग. ऑल ऑफ दिस दैट इज बीइंग गिवन टू यू. कोड वर्ड कभी दिया जाता है, एक कोड सेंटेंस दिया जाता है आपके टेक्स्ट बुक में, प्लीज़ इसको लिख लेना सो दैट द इम्पॉर्टेंट आंसर्स के लिए ये डेफिनेटली काम का आपको आएगा. आई होप the past around half an hour's explanation for this particular function of management was useful to you. और आपको जो बताया गया, जितना समझाया गया, उतना आपको डेफिनेटली जो पहले इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है उससे आपको हेल्प डेफिनेटली हो जाएगा.
do speak about the channel, do speak about the various lectures, the various subjects that are being done on the channel, free of cost, to your friends, to your relatives, to your college mates. ओके, जितने भी लोग आपके जान पहचान के हैं, हो सकता है तो हमारे एक लिंक को, लेक्चर के लिंक को अपने व्हाट्सएप पे या अपने फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे शेयर डेफिनेटली कर लेना, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे ओके दिस चैनल कैन इंक्रीज, एंड द मोमेंट द चैनल इंक्रीजेज इट इज़ यूजफुल टू अ लॉट मोर स्टूडेंट्स जिन्हें इसकी ज़रूरत है. ओके, टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.